Here we are with part 5 of chapter number 1. Okay, so in the last lecture we have discussed the merits, demerits, then classes of microbes. Okay, so out of 5 classes of microbes, we have seen or we have discussed bacteria and protozoa. Okay, we have discussed the bacteria, we have discussed protozoa. ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमेनिंग क्लासेस ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज फंगाई, algae and viruses. Okay, so first we'll see the size of fungi. The microorganisms which are included under the class fungi, they have the size that is approximately equal to 10 micron. Okay, 10 micrometer to 100 micrometer. Okay, so first characteristics, it is these are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. Means फंगाई हमने इसका एग्जांपल आई गेस इट वाज ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगता है वो, या जब ब्रेड को हम मॉइस्ट करके उसको थोड़ा सा वेट करके जब उसको 3-4 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, वैसे ही आफ्टर दैट उसका डीके हो जाता है, वो ब्रेड का जो भी उसके अंदर फूड मैटर है वो पूरा डीके हो जाता है. एंड आफ्टर डीके ऑफ द ब्रेड देयर ग्रोज द फंगाई. Okay, so they are found on decaying matter. Then next, these are eukaryotic organisms. Eukaryotic means I have discussed with you. Eu means true and karyon means nucleus. So they have the true nucleus. Some are unicellular and others are visible with naked eyes. So unicellular means they cannot be seen with naked eyes. Okay, so उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. और कुछ ऐसे होते हैं फंगाई जो हम हमारे आँख से देख सकते हैं. उसका बेस्ट एग्जांपल है जो ब्रेड के ऊपर जो फंगाई लगता है वो. दे आर सैप्रोफाइटिक. यस, सैप्रोफाइटिक मीन्स दे टेक द फूड, दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर. यहाँ पे दिया हुआ है सैप्रोफाइटिक मीन्स दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. Okay, they reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. Okay, so ये उसमें एक type of reproduction है. Now we'll see its examples, that is baker's yeast and candida mushroom. ये उसके examples हैं, या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. Okay, now moving to the next class of algae. Next class of microbes, that is the algae. Algae. Their approximately size is 10 micrometer to 100 micrometer, same as fungi. They are aquatic. वो पानी में रहता है. Aquatic means जो पानी में. They are found in water. They are eukaryotic, unicellular and autotrophic organisms. Okay, eukaryotic means they have true nucleus. Unicellular means they are single celled. Autotrophic organisms means auto means self and trophic means generating. So they produce or generate their own food or their food by their own. Okay, so they are autotrophic organisms. Then third point is photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. Okay, so photosynthesis का process आप लोग को पता होगा. Means plants जिस process से food produce करते हैं, that process is called as the photosynthesis. They use the sunlight and carbon dioxide and chlorophyll which is present in chloroplast. Okay, so उसको यूज करके उसके presence में they produce the food, that is glucose.
that is nothing but the process of photosynthesis. Okay, so photosynthesis in algae, it is carried out with the help of chloroplast. Okay, so chloroplast ये एक सेल ऑर्गेनिल है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है. ओके, सो ये क्लोरोप्लास्ट, ये दिस इज प्रेजेंट इन algae. देन नेक्स्ट पॉइंट इज उसके एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल इज क्लोरेला क्लैमिडोमोनास. Okay, very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with naked eyes. या algae वगैरह ये हमें रोड साइड पे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रीन कलर के होते हैं. या सो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विथ नेकेड आइज. बट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जो हमें दोज आर यूनिसेल्युलर. ओके, this is about the class algae. Students, moving to the last class of the microbes, that is the viruses. That is the viruses. Okay, their size is approximately 10 nanometer to 100 nanometer. Okay, here ऊपर के सारे क्लासेस में उनका साइज वॉज इन माइक्रोमीटर. ओके, दैट वॉज, मैंने बताया था आपको 10⁻⁶ मीटर्स. ओके, नाउ हियर इट इज 10 नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन्स इट इज इक्वल टू 10⁻⁹. ओके, 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meters. So viruses have the size approximately 10 nanometer to 100 nanometers. बहुत छोटा होता है. ओके, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है गाइज. नाउ अब वायरसेस में मतलब हमने देखा था कि जो फिलहाल जो करंटली जो वायरस चल रहा है दैट इज़ द कोरोना वायरस. ऑब्वियसली ये कोरोना वायरस है, ये हमें नेकेड आई से तो दिखाई देता नहीं. दैट्स वाई दे हैव द स्मॉल साइज एंड दे आर too minute that one cannot see them with the naked eyes. Okay, also अब कोरोना वायरस में यहाँ पे दिया हुआ है जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स at the age of living and non-living. Okay, this is very important point. They are said to be organisms at the age of living and non-living. Means लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एकदम एंड होता है, जो एकदम किनारा जिसको बोलते हैं, उस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. मीन्स दे मे बी वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ये हम बता नहीं सकते. अगर वो लिविंग है तो वो बहुत ही लास्ट उसके एंड पे है लिविंग के, अदरवाइज दे आर नॉन लिविंग. इट्स लाइक दैट. ओके, सो कोरोना वायरस है वो अगर वो यहीं कहीं पे मतलब टेबल पे है, किसी नॉन लिविंग थिंग पे है, सो दैट इज़ नॉट एक्टिव. जब वो हमारी बॉडी में जाता है एट दैट टाइम इट बिकम एक्टिव, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है. सो दे आर नॉन लिविंग. वायरसेस आर नॉन लिविंग, बट व्हेन दे goes into any body of the living organism, at that time they behave like or their activity is increased. Okay, they are at the age of living and non-living. It's like that. Okay, now the next point, उसके characteristics हम लोग study करेंगे. First is viruses are extremely minute, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria. या हमने बैक्टीरिया का साइज देखा था, इट वॉज अबाउट 10 माइक्रोमीटर्स, राइट. सो बैक्टीरिया से 10 और 100 टाइम्स छोटे हैं कौन? वायरसेस. दे हैव दिस मच स्मॉल साइज, सो दैट इज वाई दे कैनॉट बी सीन विथ naked eyes, and for observation of viruses we have to use the microscope. Now the next point is they are found in the form of independent particles. Means what? Virus is a long molecule of DNA, that is deoxyribonucleic acid, and RNA.
that is ribonucleic acid covered by a protein coat. Okay, so अभी जो वायरस का स्ट्रक्चर है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, उसका एक डायग्राम उसका मैं एक्सप्लेन करूंगी आपसे. सो वायरसेस आर नथिंग बट द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड और आरएनए covered by a protein coat. Okay, DNA and RNA, these are the genetic matter. Okay, so DNA and RNA, these are the genetic material. Okay, when these genetic materials, when they are covered by a protein coat, at that time, that long molecule or the long chain of DNA and RNA, that is called as the virus. Okay, protein coat होता है उसमें, that is वो प्रोटीन कोट होता है उसके अंदर, दैट इज द मेन थिंग जिसकी वजह से वायरसेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद में एक्टिव होते हैं. नाउ मूविंग टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल्स. या मैंने अभी बताया था. एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका. या ये वायरसेस क्या करते हैं, जब वो किसी नॉन लिविंग चीज़ पे होते हैं एट दैट टाइम दे आर इनएक्टिव, बट व्हेन दे एंटर इनटू अ लिविंग प्लांट, इट मे बी प्लांट और एनिमल सेल. ओके, जब वो प्लांट और एनिमल सेल में जाते हैं एट दैट टाइम वो खुद के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स उनके जो प्रोटीन कोट है उसके विद द हेल्प ऑफ दैट दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स. एंड जो होस्ट सेल होता है, इट में आइदर ऑफ प्लांट और एनिमल, जो होस्ट सेल होता है उससे हेल्प लेके वो अपने प्रोटीन क्रिएट करते हैं, एंड जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे रेप्लिका डुप्लीकेट्स बनाते हैं, और एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ वायरसेस. देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री. Yeah, that is how coronavirus is spreading. जब वो किसी एक ह्यूमन के बॉडी में जाता है एट दैट टाइम वो ह्यूमन के सेल ही यूज़ करता है टू रेप्लिकेट इट्स प्रोटीन, और उसके प्रोटीन को जनरेट करने के लिए. जब जनरेट हो जाते हैं तो एट दैट टाइम उसके बहुत नंबर ऑफ वायरसेस और उसके रेप्लिका प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो रेप्लिका जो प्रोड्यूस हुए हैं दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल. मीन्स ह्यूमंस के जो सेल होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, एंड वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं. दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स. या जो नए वायरसेस, फ्री वायरसेस जो हैं वो नए वायरसेस को इंक्रीज करते हैं, और जो ह्यूमन और जी होस्ट सेल्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं. दैट इज वाई फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. या एंड इसमें से एक वायरस है जो अभी नया निकला है, दैट इज द कोरोना वायरस. उसका भी फिजियोलॉजी सेम ऐसे ही है. वो ह्यूमन बॉडी में जाता है, अपने प्रोटीन्स क्रिएट करता, प्रोड्यूस करता, एंड जिसकी वजह से अपने नंबर ऑफ रेप्लिका बनाता, एंड वही जो नंबर ऑफ रेप्लिका उसने बनाए हैं वो ह्यूमन सेल्स को, अलग अलग ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज स्प्रेड्स. सो या दिस इज अबाउट द classes of microorganisms we have discussed thoroughly, right? Bacteria, protista, algae, then fungi and viruses. Now जो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ह्यूमन, यहाँ पे राइट, ह्यूमन वायरसेस दे आर पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स वायरस एटसेट्रा. ये कुछ वायरसेस के टाइप्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं जो ह्यूमन पे अफेक्ट करते हैं. देन कैटल वायरसेस मीन्स पिकॉर्ना वायरस, इट अफेक्ट्स ऑन कैटल. ये जो वायरस है ना, इट अफेक्ट्स ऑन कैटल्स. देन प्लांट के ऊपर अफेक्ट करने वाले वायरसेस दे आर टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एटसेट्रा. ये दो टाइप के यहाँ पे दिया हुआ है.
ये जो वायरसेस हैं दे इन्फेक्ट द प्लांट्स। देन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक बैक्टीरिया, या जो बैक्टीरिया पे ही इन्फेक्ट करता है वो वायरस, दैट इज द बैक्टीरियोफेज। सो या इसके कुछ ये हम लोग डायग्राम्स देख लेते हैं। बैक्टीरिया का डायग्राम मैंने आपको बताया था परसों, इसके एग्जांपल्स बताए थे। कॉकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो, दैट इज अ कॉमा शेप्ड। ओके, then next is these are spirillum। ये बैक्टीरिया एक दे आर यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी उनमें ऑर्गेनिल्स नहीं दिख रहे हैं, उनमें ना कोई न्यूक्लियस दिख रहा है, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एंड बट दे कैन रेप्लिकेट, ओके, दे हैव ओनली द जेनेटिक मैटर दैट इज इनक्लोज इन द न्यूक्लियाइड। मैंने डायग्राम में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ओके, so these are the examples of bacteria, and now this is paramecium that comes under the protozoa। या यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनिल्स हैं, देन उसमें फ्लैजेलम, ये सब जो है दीज आर द सीलिया। सीलिया, ओके, सीलिया होता है जिसके थ्रू वो लोकेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Now this is the ant amoeba, yeah, this is the example of protozoa only. This is found in uh, dirty water, you know, यहाँ पे दिया हुआ है ant amoeba histolytica, it is found in dirty water, या amoeba वगैरह free living in dirty water, so these are found in dirty water। उसको कुछ गंदा पानी वगैरह पीने से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरेला, दिस कम्स अंडर द algae, ओके, क्लोरेला हियर इट इज, दिस कम्स अंडर द algae। algae में या ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, एंड उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल, एंड उसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट इज टोमेटो विल्ट वायरस, या ये वायरस का एग्जांपल है। या यू कैन सी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ओनली प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर डीएनए और आरएनए, ये दोनों में से एक होता है। If DNA is present, then it is called as the DNA virus, and if RNA is present, then it is called as the RNA virus. Okay, so these are about the diagrams. Yeah, I think we have discussed a lot today. So this is about the first chapter of general science, chapter number 1, standard 8 ka, that is the living bird and classification of microbes। ओके, आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया है। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, या स्टार्टिंग फ्रॉम द biodiversity, need of classification, yes, we have seen that also। Then we have seen the 5 kingdom system of classification, उसके criterias of classification, right? We have seen the criteria of classification, then after that we have seen the chart of 5 kingdom system classification, then we have discussed the 3 kingdoms, that is kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi। yes, उनके characteristics भी हमने देख लिए, diagrams भी discuss कर लिए। then after that we have seen the merits and demerits वाला point, yes, we have thoroughly discussed that। then classification of microorganisms, उसका chart भी हमने अच्छे से, that is based on the size, okay, with reference to size of microbes, here it is given,
Okay, so yeah, we have seen the first class, that is bacteria, protozoa, fungi, and algae, viruses, each and everything along with their diagrams. Yeah, so this is about the इसका जो exercise है ये you have to do by your own. Okay, so आई होप कि ये चैप्टर्स आपको मैंने एकदम इजी वे में इसको डिस्कस करने की और इसको डिस्कस करने के ट्राई किया है। आई होप कि आप लोग को ये सारे जो वीडियोस मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड दिस इज़ पार्ट 5, 5 जो पार्ट्स बनाए हुए हैं ये आपने अच्छे से इनको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। एंड या दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, and do like, share and subscribe, and if you have any doubt or anything to tell, then you can write that down in the comment section. Okay, thank you.